Sir, Pavitra sir, you gonna start? No, you have to introduce. ठीक है. Hello, good afternoon, everyone who all are joining in and who may join later in the session. This is your host Himanshi Kaushik, and I hope that you all are doing good, safe, sound, and healthy at wherever you're taking this session from. So today we have gathered here to witness a special session on भाषा एवं साहित्य में रोजगार की नई संभावनाएं. That is new opportunities in literature and language. And I know that you are as intrigued as I am to attend this session. And for this, we have our experts here. So let me introduce you to our expert. We have Dr. Pavitra Prakash Singh, Professor, Dean, School of Liberal and Creative Arts, Social Sciences and Languages here with us. He is a doctorate in management with 3 postgraduate already in physics, English and management. And he has keen interest in international politics, international relations, strategic management, etc. Presently, he is a professor and dean of the School of Humanities with a rich and diverse experience of around 28 years in the industry teaching, research with entrepreneur experience as well. In his career, he has undertaken and supervised more than 162 academic and 7 consultancy projects, and he has presented more than 50 research papers in various national and international conferences and seminars. He has to his credit 27 books and 100 research papers already, and other referred, his papers are in Scopus and other referred journals and publications. He has a number of patents and copyrights to his credit, and for his excellent contribution, he has also been honored with a Manufacturing Association Faridabad Award 2014 by Honorable Governor of Haryana. And his area of specializations are advertising, marketing, international marketing, business environment, product and brand management, and organizational behavior. So, sir, it is a pleasure for us to be here, to be able to listen you in the webinar. And I welcome you in the webinar, sir. And along with him, we have our second expert, Mrs. Sandeep Kaur Saini. She is an English language learner expert from Abbotsford School District, British Columbia, Canada. And she's joined, and we are all excited to hear us and learn from her experience. So, ma'am, I also sincerely welcome you in the webinar here. And last but not the least, we are also joined by Mr. Anil Kumar Pandey. ये एक सहायक प्राध्यापक हैं हमारे हिंदी विभाग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में. इन्होंने अपनी शिक्षा MA और PhD हिंदी विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी से की है. ये एक प्रख्यात व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ काव्य कृतियां जैसे सूरज सा उगता रहना, अब लोग नहीं रोएंगे और इधर कुछ दिनों से जैसे लिखी हैं. एंड इन्होंने बहुत सारी गद्य कृतियां भी लिखी हैं. तो सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके अनुभव से, आपके वार्तालाप से हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे. और मैं आपका इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ. And before I request Pavitra sir to take over the screen, I just want all the participants to know that now you can post in your queries, your questions in the Q&A box or the chat box. And with this, I welcome all the experts here in the session. And Pavitra sir, over to you, and looking forward for an amazing session. Thank you, Himanshi. First of all, a very warm welcome to my old colleague from far abroad, Dr. Sandeep ji. Nice to see you once again over here in a different role. You were our colleague over here. Now you are an expert in the foreign land. Welcome you, Dr. Sandeep. And also a warm welcome to my present colleague, Dr. Anil ji. अभी वो कुछ कहना है, क्या थी आपकी वो जो हिंदी की आपने रचनाएं लिखी है, उसमें क्या नाम है? सूरज सा उगते रहना, अब लोग नहीं रोएंगे. अब लोग नहीं रोएंगे, तो एक आधी लाइन इसके बारे में सुनाइए. ये दरअसल कविताएं उस समय की थी जिन दिनों संघर्ष के दिन थे. और उसके बाद उसी संघर्ष के दिन में, क्योंकि विद्यार्थी जीवन था और विद्यार्थी जीवन होता ही संघर्षों का है, तो एक कवि अपनी भावनाओं से ही संसार की भावनाओं को तौलने और देखने की कोशिश करता है.
तो उस संग्रह में यही था कि अब दिन अच्छे आ गए हैं, क्योंकि भाजपा का आगमन भी हो रहा था, अच्छे दिन आएंगे की शक्ल में। तो हम भी उसी में कह दिए कि भाई अब लोग नहीं रोएंगे, क्योंकि ये कविताएं कठिन दिनों में उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो 2 लाइनें तो सुनाओ, या भूल गए? नहीं, उसमें एक हाँ कोई वंदना थी, तो हाँ। उस वंदना की 2 लाइनें थी कि ऐसे थी कि एक शेर की 2 लाइनें सुना देते हैं कि कैसे कहें आने वाला समय और भी पावन होगा, कैसे कहें आने वाला समय और भी पावन होगा, अब फसल धान की खेत में लहरे, क्या ऐसा वो सावन होगा। फसल धान की खेत में लहरे, क्या ऐसा वो सावन। वेरी गुड, वेरी गुड। अनिल जी, बस शुरुआत ऐसी ही रहे। हर किसी इंसान के जीवन में संघर्ष तो आता है, पर जो अगर उसका अंत सुखदायी हो तो बहुत बढ़िया है। संदीप जी, मैं बिकॉज ये हिंदी और पंजाबी में चलेगा, तो मैं हुण पंजाबी च आ जाता। तुसी भी अपनी कोई बुखार बिन तो एक अद्धी कोई गल जेकर तुसी कदी लिखी है, प्लीज एक अद्धी लाइन सुनाओ, फिर आपां अपने मेन मुद्दे ते चलदे हैं। जेकर कोई गल याद आ रही है, कोई चीज याद आ रही है, कुछ जेकर तुहाडी लिखी हुई कोई गल है। मेरी अपनी लिखी तो राइट नाउ नहीं, पर मेरे तो बहुत लाइना मैं थोड़े नाल शेयर की। बेहिम्मते ने जेड़े शिकवा करन दरां दा सीना पत्थरां दा। So बंदे जगर, I hope I'm clear, you can listen me, yeah. हाँ जी, हाँ जी, So बेहिम्मते ने जेड़े या शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग जांदे पत्थरां दा। So जे थोड़े अंदर हिम्मत है और अपने अंदर एक कमिटमेंट है कि मैं ये करना है, तो there is no challenge, you can overcome it very easily, yeah. बिल्कुल, जिवें आ दोनों गल होईया संघर्ष ते तुसी क्या कि जेकर तुहाडे च कमिटमेंट है तो तुसी बहुत कुछ कर सकते हो। उसी तरह दा साडा जेड़ा आज दा विषय या द टॉपिक व्हिच वी आर टचिंग टुडे, जिस पे हम बात करना चाहेंगे, वो यही है कि भाषा में क्या नए-नए आयाम आ रहे हैं, भाषा में क्या नए-नए रोजगार की चीजें आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो भाषा, अनेक भाषाएं लुप्त हो रही है दुनिया से। कुछ मेजर भाषाएं ही रह गई हैं। जैसे एक बार हमने सेमिनार किया तो 10वीं 11वीं नंबर पे हमारी पंजाबी आ रही थी, लेकिन डायलेक्ट्स हर जगह से लुप्त हो रहे हैं। हर 10 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा की ध्वनि, भाषा का प्रचार, भाषा का उच्चारण, भाषा का यूज बदल रहा है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि जो मेन भाषा है, जो मेन जड़ी भाषा है, वो सारी खत्म हो रही है। सो वी आर थिंकिंग अबाउट कि भाषा है क्या। भाषा, हमने जो ये लेक्चर सोचा था वो ये 2 पार्ट में सोचा था। ये जो इंटरेक्शन सोची थी कि भाषा को हम 2 एंगल्स में बोलते हैं। एक तो लिटरेचर, जो संस्कृति हम पढ़ते हैं, जो हम नॉवल पढ़ते हैं, जैसे सर ने कविता सुनाई, आपने एक बात सुनाई, और एक लैंग्वेज है। तो इन दोनों में बेसिकली देखा जाए तो भाषा टूटी हुई है, या भाषा विकसित इन दोनों में होती है, या भाषा इन दोनों हिस्सों में बटी होती है और उसके बाद ये जुड़ी होती है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे संदीप जी? अपनी पंजाबी भाषा च कुछ कहना चाहोगे? लैंग्वेज, लिटरेचर, व्हाट इज अ डिफरेंट थिंग? Yeah, thank you so much for giving the answer. Sir, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪਰਪਸਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਟਸ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਅ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਅ ਆਸਨਲ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, I used to listen a lots of stories from my mom, ਸਾਖੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੂਝਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਏ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, अनिल जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है? संस्कार चले जाएंगे, संस्कृति चली जाएगी, व्यवहार चला जाएगा और अंततः बचेगा क्या? दरअसल भाषा के जो विलुप्तीकरण की बात है, जैसे कि भाषाएं गायब हो रही है, नो डाउट गायब हो रही है, जैसे मनुष्य गायब हो रहे हैं, मनुष्यता गायब हो रही है, वैसे भाषाएं गायब हो रही है। मेन सिचुएशन ये है ना कि बदलते समय के साथ अगर आप बदलने के लिए तैयार नहीं है, या जिस भाषा का प्रयोग आप करते हैं उसको उस बदलाव की जमीन पर लाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं या उसको तैयार नहीं कर रहे हैं, तो उसके पास गायब होने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। जैसे कंप्यूटर की बात हो गई, कंप्यूटर, इसके पहले कंप्यूटर पर हिंदी का प्रवेश नहीं हुआ था, पंजाबी का प्रवेश नहीं हुआ था, लेकिन आज के परिदृश्य में लगभग क्षेत्रीय भाषाएं और जो भी नेशनल और इंटरनेशनल भाषाएं हैं वो सभी कंप्यूटर पर आ चुकी हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। एक समय कुछ लोग कहते थे कि हिंदी मर रही है, पंजाबी मर रही है, या ये वो, ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलने वाले भी तेजी से हिंदी और पंजाबी जैसी भाषाओं को सीख रहे हैं। वो इसलिए सीख रहे हैं कि इनको भारत जैसे, पंजाब जैसे प्रांत में या भारत जैसे देश में इन भाषाओं की रीचिंग बहुत बहुत समृद्ध है। इनके ऑडियंस जो हैं दूर दराज गांवों में रह रहे हैं, महानगरों में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो भी विदेशी कंपनियां से लेकर के स्वदेशी कंपनियां तक, फैक्ट्रीज वगैरह जो भी है, वो अंततः अपनी संभावनाएं तलाश करती हैं। वो ये तलाश करती हैं कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अल्टीमेटली पहुंचना तो उन्हें मनुष्य के पास ही होता है, क्योंकि व्यवहार से लेकर व्यापार तक सब कुछ मनुष्य के लिए निर्मित होता है, और जो भी वस्तुएं होती है वो भी मनुष्य के लिए ही निर्मित होती है। तो जरूरी ये है कि हम अपनी भाषाओं को अत्याधुनिक तकनीकी से इतना लैस कर दें कि ये गायब होने की बजाय इनकी उपलब्धता को लोग खोजते हुए भी हैं। अब हमें लगता है कि संस्कृत जैसी भाषाओं के पीछे दुनिया क्यों हाथ धोकर पड़ी है, क्योंकि उसके पास इतना गजब का मैकेनिज्म है, इतना गजब का व्याकरणिक ढांचा है कि बगैर उसके नासा जैसे उपग्रह सफल नहीं साबित होंगे। तो वो क्षमताएं हिंदी और पंजाबी में भी हैं, और अगर पंजाब जैसे प्रांत में और इसके बाहर भी पंजाबी चैनल, पंजाबी गीत अगर पॉपुलर हुए हैं, तो ये भाषा की शक्ति है। शक्ति बिल्कुल सही, ये ऐसी शक्ति है जो आकर्षित करती है कि इंग्लिश मैन भी अगर कहीं चल रहा है तो वो भंगड़ा डालते हुए चल रहा है, गाना गाते हुए चल, गुनगुनाते हुए चल रहा है। ये भाषाओं की शक्ति। वेरी गुड। तो एक बंदे ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ है, मनुष्य को मनुष्य बनाती है, और एक बात आपने कही, व्यवहार से व्यापार जी। तो ये भाषा और संस्कृति और साहित्य ही है। तो आज के, बट ये भी एक सच्चाई है कि आज के दिन में काफी भाषाएं लुप्त हो रही है, वो कोई भी इसमें डिसएग्री। तो इशू ये है कि बच्चा आज के दिन में ट्रेडिशनल कोई भी
व्यक्ति है वो ट्रेडिशनल, जैसे हम अपने वक्त की बात करते हैं जब एमए हिंदी या एमए पंजाबी हुआ करती थी, तो उस वक्त एमए भी कम थी, तो एमए हिंदी और पंजाबी की अपनी एक इम्पोर्टेंस थी। लेकिन आज के दिन में इतनी एमए आ गई या इतना कुछ आ गया, तो उसमें कहीं ना कहीं बंदा या जो स्टूडेंट है या कोई भी प्रॉस्पेक्ट है या कोई भी इंसान है, वो कहता है मैं एमए हिंदी या एमए पंजाबी करके करूंगा क्या, मेरे पास रोजगार की संभावनाएं क्या क्या है, क्या नया। जैसे संदीप मैडम ने कहा कि सोशल मीडिया भी एक तरह का एक रूप है ना कहने का, किसी चीज को कहने का। अभी हम कई बार देखते हैं, वो इंस्टा पे देखो तो एक बंदा है वो सिर्फ पंजाबी के अंदर ही बातें करता है और दो तरापाल के नाम से है, वो पंजाबी के ही 2-2 3-3 मिनट की बातें करता है, लेकिन बात वो संस्कृति ही की करता है। तो 1 मिनट के लिए देखें कि आज के दिन में हमारे पास जो करियर और प्रोस्पेक्ट्स है वो है क्या। जो भाषाओं में ये तो मेन थे, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, और उसके बाद कुछ आ जाते हैं हायर स्टडी और रिसर्च, और कुछ आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर और टीचिंग। तो इस पे थोड़ा थोड़ा एक अपना थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालिए, पहले संदीप मैडम फिर अनिल सर, कि आपकी तरफ से पंजाबी में क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है या कहीं भी जहां आप इसको बात करना चाहते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें, अनिल जी। तो हाउस इज ओपन फॉर बोथ ऑफ यू टू डिस्कस द प्रॉस्पेक्ट्स, एनी वन ऑफ यू। संदीप जी, आप जहां कहेंगे मैं वहां तक चला जाता हूँ। एक्चुअली ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਲ ਦੇਖੋ, ਅਨਿਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਬਲਕਿ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਐਮਏ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਏ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਮਾਈ ਓਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸਮਬਡੀ told me ਪੰਜਾਬੀ, ਵਾਈ ਸੋ, ਹਨਾ, ਵੈਰੀ ਰੂਡ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ, ਲਾਈਕ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਐਸੈਟ, ਵੀ ਆਰ ਬਾਇਲਿੰਗੁਅਲ। ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, it's such a big opportunity, like if you are bilingual or if you know about multiple languages, right? So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੀ ਹੈ। And it's a wide and huge and massive industry in these days. Every organization needs this kind of experts. So even the people are getting way more rather than, you know, the average earning. ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਂਗਲ ਨਾਲ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੈਟਸ ਪਲੇਇੰਗ ਅ crucial role, a major role in it. ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ,
ਔਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲਸ, ਕਿੰਨੇ ਵੈਬ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਸਪਰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਧਨ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਵੱਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮਾਈ ਓਨ ਡਾਟਰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਓਪਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਐਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਹਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਇਟਸ ਅ ਐਸੈਟ। ਯਾ ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਪ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉੱਧਰ ਵਿਵਸਾਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ। MA ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ PhD ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਚ ਮੇਰੀ PhD ਹੈ ਐਂਡ afterwards I did my Bachelor of Education and I have a Master in Education as well। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ। somebody told me like MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ and I feel so blessed like ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਖੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ELL ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਰ ਐਕਸਪਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਆਈਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਾਏ ਦੇ ਨੇੜੇ। Okay. So yeah, because it's something personal of me, that's why I'm seeking some permission from your end. ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Yeah, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ESL ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ELL ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਸਮਝ ਸਕਣ, ਜਾਣ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਅਸਾਨੇ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੀਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ them capable to speaking and to learn and everything. Anyhow, so my role is like I develop curriculum, and if there is no teacher in any school, then yeah, I go and I teach as well. Otherwise we prepare instructions and we do meetings with teachers like what you have to do and other stuff. So ESL teacher da ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। yes, ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਔਰ EST ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ that's and you know which we have in books, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। so we help them too. ਸੋ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ, more than 6,000 someone was telling me, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ they are hired by Fraser Health to like just entertain the calls ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ hospitals ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ multilingual ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਾਰਡਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਸਕਣ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 2 Very ਜੇ very ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੋਗੇ good. ਸੋ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ ਔਰ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਸ ਦਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕੈਡੇਮੀਆ ਇਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਡੀਅਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਲੌਗਸ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੋ ਯੂ ਹਾਇਰ ਮਲਟੀਪਲ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਸਕਿੰਗਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਡ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀਪੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ अथाह समुद्र गुड संदीप जी एक मिनट से अनिल जी कुछ बताएंगे आप हिंदी में आप जिसके बारे में भी कुछ कहना चाहें इसमें से बिल्कुल सर कहने के लिए बहुत कुछ है बहुत कुछ कहा जा सकता है समय आपका कहिए भाषा और साहित्य अभी आप कह ही रहे थे कि एक अथाह समुद्र है जिसपे आप डुबकियां लगाएं तो कुछ नहीं बहुत कुछ लेकर निकलेंगे वहां से सीपियां भी निकल सकती हैं मोतियां भी निकल सकती हैं तो एक चीज ये है कि पहले जिस तरीके से एक डॉक्टर बनाया जाता था सर आपको याद होगा पहले एक डॉक्टर होता था जो फेमस होता था पूरे एरिया में अब डॉक्टर का स्थान दांत का डॉक्टर पेट का डॉक्टर हड्डी का डॉक्टर सिर का डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर होते हैं तो मैं ये इसके जरिए ये कहना चाहता हूँ कि अन्य डिपार्टमेंटों या विभागों की या विषयों की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक बात कह रहा हूं कि अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज जहां पर्टिकुलर एक एरिया पर फोकस करती हैं वहां भाषा और साहित्य संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है उस व्यक्तित्व से आईएएस पीसीएस भी अच्छे से निकलते हैं इस बार हिंदी का काफी अच्छा स्कोर रहा है आईएएस के क्षेत्र में आईएएस पीसीएस भी बड़े अच्छे से निकलते हैं स्पीकिंग का क्षेत्र जहां भी होगा स्पीकर होगा रिपोर्टर होगा ये सब अगर निकलते हैं तो लैंग्वेज और लिटरेचर से निकलते हैं प्रोफेशनल वाले भी अंततः पढ़ाते लैंग्वेज और लिटरेचर ही है हाँ वहां पहुंचने के बाद ताम झाम ज्यादा हो जाता है फीस वास ज्यादा हो जाता है तो न्यू इंडियन फैमिली जो है थोड़ा लुटने में ज्यादा विश्वास करती है ठगे जाने में ज्यादा विश्वास करती है मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ अब भाषा और साहित्य क्या करता है भाषा और साहित्य एक व्यापक व्यक्तित्व का निर्माण करता है जिसमें से एक रिपोर्टर जब पढ़ा लिखा रिपोर्टर साहित्य और भाषा की दुनिया से जाता है तो वह अपना एक अलग ऑडियंस बनाता है आप रवीश कुमार को याद कर सकते हैं आप यूनुस खान को याद कर सकते हैं जो रेडियो से निकल करके आए पंकज पचौरी को याद कर सकते हैं आप सुधीश चौधरी को याद कर सकते हैं ऐसे कई अमीन सियानी जिनकी आवाज बिल्कुल कई एंकर है और आप रेडियो टेलीविजन से लेकर के इन इलाकों में जब जाएंगे इन एरियाज में जब आप जाएंगे तो योग्यताओं का एक बड़ा अभाव है जो भाषा और साहित्य पूरा करती है और पूरा कर सकती है ये तो एक दुनिया हुई दूसरी दुनिया जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है रोजगार की दुनिया में आप देखिए पब्लिकेशन का क्षेत्र जो इंजीनियरिंग पास करके गए हैं जो अन्य क्षेत्रों से आए हैं वे प्रकाशन खोल रहे हैं अच्छे से चला रहे हैं वे प्रिंटिंग प्रेस लगा रहे हैं लैंग्वेज और लिटरेचर वाले यह कहकर उपहास उड़ा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जॉब की कमी है मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एरिया है जहां आप एक फर्म बना करके एक पब्लिकेशन रजिस्टर्ड करा करके अगर आपके पास लैंग्वेज और लिटरेचर की जानकारी है आज हर चौथा आदमी एक राइटर है
हर तीसरा आदमी एक कवि है, हर दूसरा आदमी एक शायर है। भले ही तब वो मैं शायर हो गया, जो आप तो शायर नहीं है, मैं शायर हो गया। बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि दिल तो टूटता है ना। मौसम जब कान पे आता है तो दिल टूटता है, दिल टूटता है तो आवाजें निकलती हैं, दर्द जब टीसता है तो कलम चलती है, कलम जब चलती है तो कविता निकलती है। क्या अब बात जब है। कविता निकलेगी तो वो आप एक कवि होंगे, लेकिन एक पब्लिशर के लिए आप एक उपभोक्ता हैं, एक ग्राहक हैं। उस ग्राहक तक पहुंचने की क्षमता अगर आप में है तो आप पर डे लाख रुपए अपने जेब में लेकर के जा सकते हैं। ये भाषा और साहित्य वाले कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि भाषा और साहित्य के विद्यार्थी रोने में लगे और क्षेत्र दूसरे वाले कैप्चर करें। हम तो ये आप कह रहे हैं कि हमारे पब्लिशिंग भी एक अच्छा बिल्कुल। खासा, जैसे मैडम ने कहा कि मल्टीलिंगुअलिज्म जी। एक कैपेबिलिटी और एबिलिटी है जिसको यूज कर सकते हो, तो आप भी कह रहे हैं द्विभाषा त्रिभाषा जिसको ज्यादा भाषा बिल्कुल आती है वो अच्छा सीख। अगर एक भाषा भी आती एक है, मिनट, ये हमारी ना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें भी मल्टीलिंगुअलिज्म कहता है, यही उसमें भी यही कहता है कि बच्चे के पास चॉइस है, वो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है। इसका मतलब भाषा की जो व्यवसाय है या भाषा की जो क्या कहते हैं उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स की, वो तो खूब सारी बढ़ गई, बहुत सारी बढ़ जाती है सर। अब मैं आपको बताऊं कि जी। पब्लिकेशन की दुनिया एक ऐसी दुनिया क्योंकि है। आप पब्लिकेशन की दुनिया से काफी नजदीक है, तो आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, और इसलिए भी बताना जरूरी है कि एक आप खुद तो रोजगार अपना बिल्डअप करते ही हैं, अपने साथ साथ 15 लोगों के जॉब और निर्धारित करते हैं। ये भाषा की शक्ति है, ये लिटरेचर की शक्ति है, क्योंकि आपके पास क्रिएटिव माइंड है। आप डिजाइनर खोजेंगे, आप कंपोजर खोजेंगे, आप एडिटर खोजेंगे, आप प्रूफ रीडर खोजेंगे। ये सारे जॉब लैंग्वेज और लिटरेचर के तहत आपको मिल सकते हैं। और अंततः आप डिस्ट्रीब्यूटर खोजेंगे। और जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका अपना एक बिंब प्रतिबिंब के नाम से प्रकाशन चल रहा है। बिल्कुल सर। और आपने अपने ही स्टूडेंट्स को, वहाँ एमए वाले स्टूडेंट्स को, डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को उसके अंदर रोजगार भी दिया है। बिल्कुल, उसका संचालन पूरी तरीके से चलो करती है। अलग बात है, बट एक अच्छी चीज है ना। बिल्कुल आप उस चीज को अच्छी तरह जानते हैं तो आप बता पा रहे हैं। जी। अब प्रकाशन की दुनिया के साथ साथ थोड़ा सा अगर हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगर इसी दुनिया से, साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए क्षेत्र में और आगे चलते हैं, तो मैम ने भी बताया कि क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट राइटिंग की दुनिया में बेशुमार संभावनाएं हैं। आज मैं आपसे बताऊं कि हर 15वां आदमी ये सोच रहा है कि वो या तो वेब सीरीज में काम करे या तो वेब सीरीज का क्रिएशन करके किसी निर्देशक के अंदर काम करे। यह दुनिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पर संचालित हो रही, या आप भी जानते हैं। Sir, very sorry to interrupt. वहां ये सारी संभावनाएं डायलॉग राइटर के तहत संवाद लेखन जिसको हम कहते हैं, और संगीत लेखन से लेकर के कंटेंट राइटिंग तक की, वेब सीरीज से लेकर के फिल्मों तक की दुनिया में, धारावाहिकों तक की दुनिया में आपके पास थोड़ी सी सोचने की क्षमता अगर है तो इस क्षेत्र में आप आ सकते हैं। और यह शक्ति साहित्य और भाषा देती। एक बात जो मैं कहना चाहता था सर, वो ये कि जो मैं अपने लवली प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की विशेषता बताना चाहता था कि अन्य जगहों पर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, नए क्षेत्रों में खोजना नहीं चाहता। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ का जो विभाग, जैसे हिंदी विभाग मान लीजिए या पंजाबी डिपार्टमेंट ही ले लीजिए, हमारे यहाँ जो जिन चीजों को मैं बता रहा हूँ, मैं चाहे पब्लिकेशन बता रहा हूँ, मैं चाहे प्रिंटिंग बता रहा हूँ, मैं चाहे कंटेंट राइटिंग बता रहा हूँ, मैं चाहे क्रिएटिव राइटिंग बता रहा हूँ, ये सब विधिवत सिलेबस में शामिल किए गए हैं और निरंतर बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे यूट्यूब चैनल का भी संचालन कर रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे ब्लॉग राइटिंग कर रहे हैं। अभी एक बीए फाइनल का एकदम पास हुआ लड़का अभी एमए हिंदी में एडमिशन लिया, अच्छा कविता संग्रह लिख करके लाया है खंडहर नाम से, और उसको बिन प्रतिम पब्लिकेशन में छापा। तो हम इस प्रकार के सिलेबस का निर्माण करके नई संभावनाओं और नई दुनिया में उन्हीं बच्चों को ला करके रख ही नहीं रहे हैं, बल्कि अभी हमारे बच्चे इंटर्नशिप में काम करने गए हैं।
डिफरेंट क्षेत्र में गए। एक की 2 बच्चे तो कुल्लू के एक स्कूल में गए हैं, गुरुकुल शिक्षण संस्थान में। उनका फोन आया मेरे पास कि अनिल जी क्या नए माइंड के बच्चे हैं कि जिन चीजों को हम नहीं खोज पाए तो वो इन बच्चों से करवा रहे हैं। अब ये चीजें सुन करके हमें प्रसन्नता हो रही, आपके निर्देशन में रहते हुए हमने जिन नए तरीकों को खोजा अब बढ़ रहे हैं। आप कह रहे थे भाषा अभी कुछ समय में आप कह रहे थे भाषा विलुप्त हो रही है। आप देखिए अवधी और ब्रज भाषा जैसी सशक्त माध्यम हमारे पास थे, रामचरित मानस जैसे ग्रंथ उसमें लिखे गए अवधि। अब उसके हम बाजार के क्षेत्र में उसको नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि प्रयोगकर्ता की कमी थी। आप जैसे प्रयोगधर्मी निर्देशन अगर मिलते तो उनके कंटेंट को अभी भी लोग यूट्यूब वगैरह पे ला रहे हैं, बेशुमार पैसे कमा रहे हैं। हम भाषा को बाजार में लेकर जाएं, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत ही संभावनाओं के साथ हमारी तरफ देख रही हैं। जितनी भी केंद्रीय संस्थान हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड जितने भी संस्थान हैं, उसमें एक भाषा अधिकारी की जरूरत होती है। अगर राज्य भाषा है तो राज्य भाषा अधिकारी होगा। अगर हिंदी को तो मैं कहता हूँ चाहे पंजाब में कहीं भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है तो एक भाषा के अधिकारी की जरूरत है। अनुवादक की मांग इतनी ज्यादा है सर, इतनी ज्यादा है कि मैं आपसे कहूँ कि अच्छे व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं लोगों को। अभी मेरे पास कई प्रपोजल आए हैं कि 25-30 हजार रुपए 100 पेज के देने के लिए तैयार है कि अनिल जी इसका अनुवाद पंजाबी में करवा दो, इसका अनुवाद इंग्लिश में करवा दो, क्योंकि हर कोई फेमस होना चाहता है। पैसे की कमी लोगों के पास नहीं। अब पैसा कैसे लेना है ये अंततः हमारे विभाग डिपार्टमेंट जो हिंदी भाषा पंजाबी भाषा को संचालित कर रहे हैं उनके माइंड मेकर्स को सोचना है, और जो इन भाषाओं को पढ़ करके फील्ड में उतर रहे हैं उनको सोचना है। क्योंकि शौके दीदार है तो नजर पैदा, उधार की आंखों से सौंदर्य का दर्शन नहीं हो सकता। सुंदरता तभी दिखेगी जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, देखेंगे। अगर मैं कहूं कि बीपी सर सामने वो जो कैंपस दिख रहा है बहुत सुंदर है, और आप अगर आंखें नहीं खोले हैं आप उसको महसूस करेंगे लेकिन खुश नहीं होंगे। और अगर आप आंखें खोले हैं आप कहेंगे यार क्या गजब का एटमॉस्फेयर बना है कि चलो एक कप चाय ही पिया दे। अब एक कप चाय के पीने की संकल्पना सौंदर्य को देखने के बाद आई, अगर ना देखते तो चाय की बात ही ना आती। भाषा और साहित्य ये चीजें उपलब्ध कराती हैं। अब हम खुद अंधेरे में बैठे रहें और ये कहें कि संसार खत्म हो रहा है, तो ये कहने से पहले हमें खत्म हो जाना चाहिए, ये जरूरी है। क्या बात, बहुत अच्छे अनिल जी, बहुत अच्छा वार्तालाप रहा आप दोनों से। संदीप जी, जैसे आपने बताया कि मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल और हर तरह की भाषा में। जैसे आप कनाडा में हैं तो आप तो पंजाबी और इंग्लिश तो जानते ही हैं, बट आपने फ्रेंच भी बताया कि आप अपनी बेटी को भी पढ़ा रही हैं। आपका अपना एक एग्जाम्पल है कि आप पंजाबी भाषा को पढ़कर वहां गए और उधर जाके तुसी इतना बढ़िया काम कर रहे हो। तो सेम पे सर ने व्यवहार से व्यापार और आंखें, और आपने कहा आंखें बंद कर कर शौके दीदार नजर पैदा, और आंखें बंद हो तो सौंदर्य का दर्शन नहीं। तो उसके लिए हमें बाजार में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप दोनों ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बताई, फ्रॉम कंटेंट राइटर्स, ट्रेडिशनल तो आपने सिविल सर्विसेज की बात कर ही दी है, टीचिंग की बात कर दी है, और बाकी सब चीजें यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया। तो संदीप मैम आपने बहुत ज्यादा डिटेल में सोशल मीडिया बताया कि कैसे अनुवादक मीडिया ट्रैफिकिंग ला सकते हैं उसमें। प्लीज आप कुछ कह रहे हैं? सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। एक चीज जेडी अपने रह गई सारी गलबात च, मैं आई वुड लाइक टू एड इट ऑन, एक टैक्नीकल राइटिंग ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਸਿਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਫ ਹੋਵੇ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੈਸਿਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿਹਾ। बट संदीप मैम सिंपल एक छोटा जिहा कहांगे,
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ 3-4 ਪੇਪਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਜੋ ਕੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਸਕੋਪ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੈਜਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਦੋ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰ, व्यवहार से व्यापार, ਤੇ व्यापार ਤਾਂ ਹੈ, व्यापार ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਾਈਟਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੌਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਮੈਮ ਐਂਡ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਦੀਪ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ USA ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਹੋਣੇ। ਆਪਾਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ LPU ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ दोबारा तो एड्रेस करन नु। अनिल जी आपके शेर भी हमने सुने, हमने कविताएं तो बड़ी सुनी थी, आज शेर भी हमने सुने आपके। तो नाउ ओवर टू यू हिमांशी मैम फॉर एनी क्वेरीज if students are having. Yeah, sir, thank you, ma'am, thank you, Anil sir, ma'am. बहुत अच्छा लगा मेरे को भी सुनकर। एज अ स्टूडेंट जब मैं आपकी बातें सुन रही थी तो मेरे को ऐसे मोटिवेशन फील हो रहा था दैट हमारी लैंग्वेज जो है दैट इज लाइक अ बेस जो हमें एक्चुअली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। एंड सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे रजिस्ट्रेंट्स है तो मैं उन्हें ले सकती हूँ? जी जी मैम। सर फर्स्ट अनिल सर आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कैसे स्वतंत्र लेखक के रूप में हम ब्लॉगिंग और जो हम मतलब ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें होती है उसमें हम कैसे अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। सो इट इज लाइक आई थिंक कंटेंट राइटिंग जो है जो हम लास्ट में हमने पॉइंट भी टच किया, उसमें हम हाउ कैन वी इंक्रीज द सैलरी, बिकॉज आई थिंक एक नीश होता है, नीश आई मीन थिंग है कंटेंट राइटिंग। सो उसमें हाउ कैन वी एक्सेल, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग के तहत बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग से जुड़ करके एक ऐसा प्रश्न है कि सैलरी कैसे इंक्रीज करें, पैसे कैसे बढ़ाएं। तो एक तो जो ब्लॉग राइटर हैं और जो यूट्यूब की दुनिया में है वो लोग गूगल एडसेंस से जुड़े होंगे। गूगल एडसेंस एक ऐसा माध्यम है जो खुद विज्ञापन देता है। गूगल पर जो भी विज्ञापन दिखाते हैं वो आपके ब्लॉग पर रिफ्लेक्ट करेगा, और जितनी संख्या दर्शकों की होगी उतने ज्यादा पैसे आपके पास आते जाएंगे, आपके अकाउंट में आते जाएंगे। एक तो ये। दूसरा ये है कि आप का ध्यान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्राकृतिक घटनाओं पर होनी चाहिए। जैसे अभी ये समय प्राकृतिक आपदाओं का चल रहा है, तो फगवाड़ा में कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, गंगा का स्तर, पानी का स्तर कहां तक जा रहा है, इन सब के विषय में अगर आप लाइव रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसको अगर कंटेंट राइटिंग में ढाल सकते हैं, तो बहुत सारे न्यूज मैगजीन्स, बहुत सारे पत्रिकाएं, बहुत सारे अखबार आपके राइटअप को हाथों हाथ लेगी, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स के 250 से 500 रुपए तक लोग पे कर रहे हैं। ये फ्रीलांसर के तौर पर है कि आप घर बैठे रोज 10-12 हजार रुपए कमा सकते हैं। हमारे प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, नाम तो क्या बताएं उनका, जलंधर के हैं। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 6 बजे तक 5-7 रिपोर्टिंग करते हैं और करके डिफरेंट अखबारों को भेज देते हैं। शाम होते होते उनके पास 1500 से 2000 रुपए, 2500 रुपए आ जाते हैं। ये सैलरी इंक्रीज करने की बातें हैं। व्यक्तित्व भी इंक्रीज होगा, सैलरी भी इंक्रीज होगी, नाम भी होगा, फेम भी होगा, और कुल मिलाकर बात ये कि दुनिया आपको जानेगी।
कोई अगर बुलाएगा तो अच्छा खासा पैकेज देकर बुलाएगा, फ्री में नहीं बुलाएगा, टीएडीए भी देगा जी। राइट, थैंक यू सर। पवित्र सर, जी मैम। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे क्वेश्चन पे? नहीं बस ठीक है, सर ने बता दिया कि कंटेंट राइटिंग में जितना वो इसमें वो कहते हैं जितना गुड़ फेंकोगे उतना मीठा उतना मीठा होगा। तो ये तो एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है कि कंटेंट राइटिंग भाषा में आज के दिन में कोई सबसे अच्छा ओपन सोर्स ऑफ अर्निंग है तो वो कंटेंट राइटिंग ही है, क्योंकि वो इतना ओपन है, nobody can control it and nobody can stop it both way around. It is so open ended. आपको अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और दूसरी भाषा का इतना कि आप समझ लो, आप उसको समझकर अपनी भाषा में जो मर्जी कहते रहो। और सच में अच्छे इंग्लिश लिखने वाले भी चाहिए, हिंदी वाले भी चाहिए और पंजाबी वाले भी चाहिए, सच में बहुत कमी है। और एक अलग दुनिया है विज्ञापन की। विज्ञापन में तो बेशुमार पैसे, ये एक लाइन लिख दीजिए, ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है, वीको तरे मरे क्रीम, वीको टर्मरिक, ये जो स्लोगन्स हैं, त्वचा की रक्षा करे वीको, ना त्वचा की रक्षा करे वीको तरे मरे क्रीम, ये सारे क्या हैं, वीको वज्रदंती और दांतों वाला। तो ये बेशुमार पैसों की तो कोई कमी ही नहीं है लैंग्वेज और लिटरेचर। आपने बढ़िया कह दिया, मेरे को याद आ गया वो जब बजाज की एक एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशनी देता बजाज। फिर उसमें आया क्या रंगीन जवानी थी, एक राजा था एक रानी थी, राजा रानी शर्मा देते जब रोशनी देता बजाज। फिर आज के दिन की बात होती है, अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूँ, गोली खाकर जीता हूँ, लेकिन आज भी घर के अंदर रोशनी देता बजाज। तो भाषा के आयाम और भाषा में तो अगर आपने सैलरी बढ़ानी है, बस आपको भाषा का एक मास्टर होना चाहिए अपनी भाषा का। अब जैसे हम मार्केटिंग के, तो हमें पता होना चाहिए कि हम मार्केटिंग को कैसे यूज कर सके। जैसे आप सब लोग एक्सपर्ट्स हैं भाषा के, लैंग्वेज के, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पंजाबी हो, बेशुमार कंटेंट राइटिंग का स्कोप है। अच्छा सर, थोड़ी सी चूक जमीन पर भी ला देती है। नैनो जब शुरू में निकली थी बहुत बेशुमार बिक रही थी, जैसे उन्होंने कहा कि गरीबों की गाड़ी ये स्लोगन ही उनके लिए भारी पड़ गया कि अब लखपति करोड़पति आदमी गरीब क्यों बने। नो डाउट अपॉर्चुनिटीज बहुत जी। Thank you, sir. And ma'am, we have one question for you, Sandeep ma'am. It is, what are the skills, qualifications, or additional training that may be required to seize all the opportunities that we have talked about in the webinar? Like, do we need any other skills as well, or the training, to attain or to get what you are or what the experts are getting? Well, it's a very important question, and thank you so much for asking me. Certainly, well, when you talk about language and when you just want to communicate something, so you need a skill for speaking. And as all of us, we are talking about like creative writing and a content writing. If you have a command on a good writing and you know the writing skill, you are unbeatable. So these are the basic foundation when you just want to say something, because as Dr. P.P. Singh was saying, like, you must have an art to say in a different manner. We were just having some discussion about, and we present a couple of the examples, right? He was giving example of Bajaj. So how differently and how beautifully you can say your thing, that matters a lot. So certainly these skills are base, and we need these skills to be successful. If you are a multilingual or if you are a bilingual, even, world is yours. There is no limit. Yeah, sky is the limit then. Thank you, ma'am. Pavitra Thank sir. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्किल तो आप ही के अंदर है, पर वही है डिसिप्लिन, और आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। जो अगर आप अपनी लैंग्वेज में स्ट्रांग नहीं है, आप अपने आप को कैपेबल, अभी मैं कई बार ना वेबिनार्स या सेमिनार्स में बैठते हैं हम, तो हम देखते हैं अभी भी ना, अब लोगों ने एमए हिंदी भी कर ली है या पीएचडी के भी स्टूडेंट है, तो उनको भाषा में मात्रा, कॉमा, बिंदी,
वो जो भी इनकी चीजें होती है ना, वो पता ही नहीं है कि कैसे लगना है। तो वो जितनी देर तक आप उसके अंदर घुसोगे नहीं ना, लैंग्वेज के अंदर, और वो स्किल तो वही है, भाषा बोल तो आप भी रहे हो हिंदी में और मैं भी रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि क्या हम उसको सही तरह से लिख पाएंगे, क्योंकि जो अगर आप सही तरह से लिखेंगे नहीं और मैसेज किसी और तरह से चला जाए तो वो गड़बड़ है। ऐसे जैसे जैसे चार लफ्ज हैं, चार वर्ड्स हैं, रुको मत जाओ, है ना। अब इसके अंदर कॉमे का खेल है, रुको कॉमा लगा दो, मत जाओ, भाई रुक जाओ मत जाओ। अब रुको मत कॉमा लगा दो जाओ, अब दोनों का मतलब ही डिफरेंट हो गया। अब जितनी देर तक लोगों को ये स्किल, ये भाषा का कंट्रोल ही नहीं आएगा, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो अल्टीमेटली बात तो यही है, सेल्फ डिसिप्लिन, लर्निंग, प्रैक्टिस। Right. Yes, Yeah. indeed. And I think we're done with the questions. I just want to ask कि किसी के पास अगर कोई और query है, कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो सर, मैम, मैं आपसे परमिशन चाहूंगी ये वेबिनार को रैप करने के लिए। Thank you, ma'am ji. Thank you, ma'am Himanshi. Thank you, Sandeep. Nice to see you once again. Thank you. Same Thank you. here. Sorry to Thank you. disturb your morning, but you can have It's a, okay. whenever you are coming back over here, the cup of coffee and a Starbucks or a Tim Hortons on me over here. Thank you. Thank you Regards so to much. you and your Yeah, family. for sure. Thank you, Anil ji. Thank you. Thank you, sir. Himanshi. Thank you so much, sir. And at last, I just want to thank all the participants, of course. And I want all to know that if you've missed any part of this seminar or webinar, this will be uploaded on YouTube as well. So you can just check and watch the session there. So with this, I take your leave, and I at last thank all the experts here for joining, for crediting your time and experience for us. And with this, I take the leave, and until then, stay safe and stay healthy, and meet you soon in the next webinar. Thank you.